فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کے گوپن پلی میں جلد ہی وسیع پیمانے پر جانوروں کی دیکھ بھال کا مرکز تعمیر کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے رنگا ریڈی کلیکٹر کے ذریعے کل 4850 مربع گز کو GHMC سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس میں سے 4350 مربع گز میں جانوروں کی دیکھ بھال کی سہولت اور ویٹرنری اسپتال تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ 500 مربع گز میں پالتو جانوروں کا شمشان خانہ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ سری لنگم پلی زون کے گوپن پلی گاؤں میں GHMC اینیمل کیئر سینٹر حالیہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے منظوری کے بعد حکام کو توقع ہے کہ یہ سہولت اگلے 6 ماہ میں تیار ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے رنگا ریڈی کلیکٹر کے ذریعے کل 4850 مربع گز کو GHMC سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس میں سے 4350 مربع گز میں جانوروں کی دیکھ بھال کی سہولت اور ویٹرنری اسپتال بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی 500 مربع گز میں پالتو جانوروں کا قبرستان بھی بنایا جائے گا۔ اسی دوران GHMC کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ کیٹیڈن میں ایک اور نگہداشت کے مرکز کے لیے کام جاری ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 30 نومبر کو تلنگانہ ریاست کو حقیقی آزادی حاصل ہوگی اور دسمبر میں عوام کے لیے کانگریس زیر قیادت نئی حکومت کی خوشخبری رہے گی۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ 30 نومبر کو KCR خاندان سے تلنگانہ عوام کو نجات ملے گی۔ کانگریس پارٹی نے 9 دسمبر 2009 کو علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح جاریہ سال دسمبر میں کانگریس حکومت کی عوام کے لیے نئی خوشخبری رہے گی۔ تلنگانہ عوام تبدیلی کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں اور سونیا گاندھی کی جانب سے اعلان کردہ 6 ضمانتوں کی عوام تائید کریں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ عوام کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ تلنگانہ میں ان کے اچھے دن آئیں گے۔ 30 نومبر کو عوام کا فیصلہ ریاست کی بھلائی کے حق میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو آنے والا وجے دشمی جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے کیونکہ کانگریس کی 6 ضمانتیں عوام کی زندگی میں نئی روشنی پیدا کرے گی۔ ریونت ریڈی نے KTR اور ہریش راؤ کو رنگا اور بلا سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ شکست کے خوف سے کانگریس کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف اہانت آمیز بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے KTR اور ہریش راؤ کو کانگریس دور حکومت اور BRS دور حکومت میں ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات پر کھلے مباحث کا چیلنج کیا۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے امید ظاہر کی ہے کہ چندرشیکھر راؤ ایک بار پھر تلنگانہ میں چیف منسٹر بنیں گے اور 30 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے بعد وہ جیت کی ہیٹ-ٹرک بنائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تلنگانہ سمیت 5 ریاستوں کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان کی AIMIM پہلی بار راجستھان میں انتخابات میں حصہ لیں گی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ KCR دوبارہ تلنگانہ کے چیف منسٹر بنیں گے۔ ہماری پارٹی کے MLAs بھی کامیاب ہوں گے جس حلقے سے بھی وہ مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا تلنگانہ میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ حیدرآباد لوک سبھا MP نے کہا کہ ان کی پارٹی راجستھان میں پہلے ہی 3 امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے اور جلد ہی تلنگانہ میں امیدواروں کا اعلان کرے گی۔ کونا راؤ پیٹ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان 2005 میں ایک قتل کی واردات میں اس کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے لیے دبئی UAE میں ایک جیل میں 18 سال گزارنے کے بعد گھر واپس ہوا ہے۔ وزیر IT و انڈسٹریز KT راما راؤ کی مداخلت سے یہ ممکن ہو سکا، جنہوں نے UAE کے عہدیداروں سے اسے اور دیگر 4 لوگوں کو رہا کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہ نوجوان ڈی لکشمن 2000 کے اوائل میں روزگار کی تلاش میں دبئی گیا تھا، تاہم 2005 میں وہ دیگر 4 SV ملیشم نام پلی اور ہنمنتو کے ساتھ ایک نیپال شہری کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث تھا۔ دبئی کی ایک عدالت نے ان تمام کو اس جرم میں ان کے ملوث ہونے کی پاداش میں 25 سال جیل کی سزا دی تھی۔ چند ماہ قبل راما راؤ نیپال گئے اور مقتول کے خاندان کو معاوضے میں 15 لاکھ روپے حوالے کیے۔ انہوں نے UAE کی حکومت سے انہیں معافی دینے کی بھی درخواست کی، تاہم جرم کی سنگینی کے باعث UAE حکومت نے عہدیداروں نے ابتدا میں اس درخواست کو قبول نہیں کیا تھا۔ ستمبر میں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے سلسلے میں ان کی کاوشوں کے حصے کے طور پر راما راؤ نے دبئی کا دورہ کیا۔
इस दौरे के दौरान उन्होंने सजा याफ्ता इन 5 अफराद को रिहा करवाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुस्तानी काउंसलेट ओहदेदारों और UAE हुकूमत के ओहदेदारों से उन लोगों की रिहाई से ताल्लुक से बातचीत की। इत्तेफाक से दुबई की एक अदालत ने लक्ष्मण को जेल में इसके अच्छे चालो चलन को मलहूस रखते हुए माफ़ी देना मंजूर कर लिया। ताहम दीगर 4 दुबई में कैद हैं। उनके अरकान खानदान अब उन्हें जेल से रिहा करवाने के लिए कोशिश करने KT रामाराव से अपील कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली चुनाव के शेड्यूल की इजराई के साथ ही आइंदा हुकूमत के बारे में कयास आराइयों में शिद्दत पैदा हो चुकी है। सियासी पार्टियां अपने इम्कान तलाश कर रही हैं तो दूसरी तरफ अवाम और सोशल मीडिया की सतह पर कांग्रेस की तेलंगाना की आइंदा असेंबली के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे कायम किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल में असल मुकाबला बरसर इख्तिदार BRS और मेन अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान है, जबकि BJP मुकाबले की दौड़ से काफी पीछे हो चुकी है। कर्नाटक असेंबली नताइज तक सूरत हाल ये थी कि तेलंगाना में सेरुखी मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद एक तरफ तेलंगाना में कांग्रेस का ग्राफ बेहतर हुआ तो दूसरी तरफ BJP के रियासती सदर के तौर पर बंडी संजय की जगह किशन रेड्डी के तकर्रुर में BJP केडर के हौसलों को पस्त कर दिया है। बाज़ सियासी गोशों की जानिब से तेलंगाना में मुअल्लक़ असेंबली की पेश कयासी की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मुअल्लक़ असेंबली की सूरत में हुकूमत तश्कील कौन देगा? किसी एक पार्टी के लिए हुकूमत तश्कील देना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस के BRS के साथ इत्तेहाद के इम्कानात मौहूम दिखाई देते हैं। BJP और BRS हल्कों में मुअल्लक़ असेंबली की सूरत में दोनों पार्टियों में इत्तेहाद के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि BRS और BJP दोनों एक जबान में ये दावा कर रहे हैं कि भले ही मुअल्लक़ असेंबली क्यों ना हो, लेकिन हुकूमत हमारी होगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक मुअल्लक़ असेंबली का मतलब दीगर पार्टियों से अरकान असेंबली की खरीदी या फिर किसी पार्टी से मुफाहमत होगा। मीडिया के बाद गोशों में ये तासुर किया जा रहा है कि मुअल्लक़ असेंबली की सूरत में BRS के लिए तश्कील हुकूमत के इम्कानात रोशन होंगे। साफ जाहिर है कि BRS तश्कील हुकूमत के लिए BJP से मुफाहमत कर सकती है, बशर्त यह है कि BJP के पास दरकार अरकान की तादाद मौजूद हों जो तश्कील हुकूमत में मददगार साबित हो सकें। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स गच्चीबावली के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की तशख़ीस की गई। 2D ECO और दीगर टेस्ट मुफ्त किए गए। खासतौर पर ख़वातीन के लिए सब्सिडाइज्ड कैंसर पर यूनिशन एंड डिटेक्शन स्क्रीनिंग कोपन्स तकसीम किए गए ताकि इससे ख़वातीन के लिए कैंसर के तदारुक इसका इब्तदाई मरहले में पता चलाने में मदद होगी, जिससे इसका इलाज हो सके। चीफ डॉक्टर खुसरो सलीम खाजी ने कहा कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर ग्रो एन रेड्डी ने कैंसर के तदारुक इसका पता चलाने के लिए तशख़ीस की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है ताकि ये ख़वातीन की सेहत के लिए फ़ायदा मंद हो, जिसमें ख़वातीन के लिए लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी टेस्ट निहायती रियायती फ़ीस पर किए जाते हैं। कैंसर की तशख़ीस और सब्सिडाइज्ड कोपन के लिए ये फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा की जा सकती हैं। फ़ोन नंबर 9173320341। ये स्क्रीनिंग 31 दिसंबर 2023 तक होगी। असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को खत देने आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का हंगामी इजलास मुनक़द हुआ। सदरनशीन मुरलीधरन MP की सदारत में मुनक़िदा इजलास में इंचार्ज तेलंगाना मानिक राव ठाकरे, सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, मधुयाक्षी गौड़ और दीगर ने शिरकत की। मीडिया के मुताबिक कमेटी ने तकरीबन 60 ऐसे असेंबली हल्के जात के उम्मीदवारों के नामों को खत दे दी हैं जहां टिकट के लिए कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस हल्कों से सिर्फ एक नाम को खत दी गई। तमाम 119 असेंबली हल्के जात के लिए नामों की तजावीज़ हाईकमान को पेश की जाएंगी और उम्मीद है कि मंगल या चारशंबे को AICC इलेक्शन कमेटी इजलास मुनक़द होगा, जिसमें नामों को मंजूरी दी जाएगी। हाईकमान की मंजूरी के बाद 2 मराहिल में फहरिस्त जारी की जाएगी। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान का इंतजार कर रही है। इसी दौरान OBC तबक़ात को ज़ायद नुमाइंदगी का मुतालबा करके कांग्रेस की OBC कायदीन ने हाईकमान से नुमाइंदगी की 119 में 35 नशिस्तों की मांग की जा रही है। आला तबक़ात से भी हाईकमान से नुमाइंदगी की गई। बताया गया है कि खम्मम ज़िले की तमाम 10 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों को खत दे दी गई हैं, जिनमें हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत करने वाली P श्रीनिवास रेड्डी और T नागेश्वर राव के नाम शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास में बाज़ असेंबली हल्क़े जात के उम्मीदवारों के मसले पर कायदीन में इख्तिलाफ राय पैदा हुआ, जिसके नतीजे में इन हल्क़ों के लिए 1 से ज़ायद नामों की सिफारिश की गई। इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मधुयाक्षी गौड़, रोहित चौधरी, PC विश्वनाथ और दूसरों ने शिरकत की।
इसराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट ने आज गजा के मुकम्मल मुहासिरे का हुक्म दिया है। गैलेंट ने कहा है कि नए इक़दामात से बरक़ी काट दी जाएगी और यहाँ खाना और ईंधन दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी दौरान गजा पट्टी में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1300 हो गई है, जबकि 1,23,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। इसराइल में मरने वालों की तादाद 800 हो गई है, जबकि 2,200 से ज्यादा जख्मी हैं। उधर गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि हफ्ते के दिन से गजा पट्टी पर हुए इसराइली मिसाइलों के हमलों के नतीजे में 511 अफराद हलाक और 2,750 जख्मी हुए हैं। अमेरिका की हुकूमत ने तस्दीक की है कि उसके 9 शहरी इसराइल में मारे गए हैं। एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और वो अपने इसराइली एहलकारों के साथ मुस्तकबिल राब्ते में है। इंग्लैंड ने मीडिया ने भी खबर दी है कि उसके 10 से ज्यादा शहरियों के मुतालिक खदशा है कि वो इस वाक़े के बाद हलाक हो गए या फिर लापता हैं। कम से कम 10 नेपाली बाशिंदे भी फलस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास के हमले के नतीजे में हलाक हुए हैं। नेपाल की वजारत खारिजा ने कहा है कि हमलों में 4 नेपाली जख्मी भी हुए हैं। इसराइल के लंदन में सिफारत खाने के बाहर फलस्तीनियों के एहतजाज के बाद नारेबाजी और आतिशजनी से जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामी कारकुन पर हमला हुआ, जबकि जारहाना हथियार रखने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसराइल के लंदन सिफारत खाने के बाहर एहतजाज के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्गस्टन हाई स्ट्रीट पर एक इमारत को मुजरिमाना नुकसान पहुंचाने के बाद मजीद गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए अफराद में से एक को इमरजेंसी वर्कर पर हमला करने, दूसरे को नस्ली तौर पर मुजरिमाना नुकसान पहुंचाने और तीसरे को जारहाना हथियार रखने के इल्जाम में ले जाया गया था। लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन पर फलस्तीनी और इसराइली हामियों के दरमियान झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने एक रात को अमन बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की, जहां हजारों फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन इसराइली सिफारत खाने पर उतर आए। वीडियो में दर्जनों पुलिस अफसरान को मगरबी लंदन के हाई स्ट्रीट स्टेशन पर मुजाहिरीन को अलग करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जबकि 1000 से ज्यादा फलस्तीनी हामी कारकुन बाहर सड़कों पर जमा थे। कैंसगटन हाई स्ट्रीट पर मुजाहिरीन की तरफ से आतिशबाजी करते हुए देखा गया। कुछ इसराइली सिफारत खाने की तरफ, क्योंकि फलस्तीन की हिमायत करने वालों ने बताया कि मशरिक़ वस्ता को पुरअमन तरीके से तब्दील करने का कोई तरीका नहीं है। ऋषि सुनक ने इसराइल के लिए अपनी हिमायत जाहिर करने के लिए लंदन के एक इबादतगाह का भी दौरा किया और बाद में अपने फ्रांसीसी, जर्मन, अमेरिकी और अतालवी हम मनसबों के साथ एक मुश्तरका बयान में हमास की मजम्मत की। 3 दिनों में इस तनाज़े में तकरीबन 1600 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें से अक्सर आम शहरी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.